Good morning, student. Bharati College of Engineering and Technology, Durg. Computer Science and Diploma branch. 5th semester students, 3rd year. Subject on programming in Java. My name is Nitish Kumar Chandakar, Assistant Professor from Computer Science Department. So today's our topic is basic operators in Java. जावा में जो बेसिक ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं वो हम देखने वाले हैं। इसके पहले C++ और सी लैंग्वेज आपने पिछले क्लास में पढ़ा है, जिसमें डिफरेंट ऑपरेटर्स आप लोग को पहले से पता है। बट जो जावा रहता है उसमें सभी ऑपरेटर्स जो C++ में पढ़े हो उसमें से कुछ ऑपरेटर यूज़ होते हैं और कुछ ऑपरेटर यूज़ नहीं होते हैं। तो कौन कौन से ऑपरेटर्स जावा में यूज़ होते हैं वो हम देखने वाले हैं। जावा प्रोवाइड्स अ रिच सेट ऑफ ऑपरेटर्स टू मैनिपुलेट वेरिएबल्स। वी कैन डिवाइड all the Java operators into the following groups. First is a arithmetic operator, second one is a relational operator, third one is a bitwise operator, fourth one is a logical operator, fifth one is a assignment operator, sixth one is a miscellaneous operator. MIC means क्या होता है? Miscellaneous operator. So one by one I am deal this operator. So first of all, arithmetic operator. Arithmetic operator means arithmetic operators are used in mathematical expression in the same way that they are used in algebra. The following table listed the arithmetic operators. Arithmetic operators जो होता है वो एक mathematical expression होता है। इसका यूज जो है अलजेब्रा वगैरह जो इक्वेशंस रहते हैं उसको सॉल्व करने के लिए किया जाता है। अब रिलेशनल ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर आपको पता है कौन कौन से होते हैं। प्लस हो गया, एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मॉड्यूलस, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। सो दीज आर द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज्ड इन जावा। सेम है C++ में भी यही ऑपरेटर हम पढ़े थे। नेक्स्ट वन इज अ रिलेशनल ऑपरेटर। देयर आर फॉलोइंग रिलेशनल ऑपरेटर्स सपोर्टेड बाय जावा। जो जावा रहता है वो डिफरेंट रिलेशनल ऑपरेटर्स सपोर्ट करता है। एज्यूम वेरिएबल A होल्ड्स वैल्यू ऑफ 10 एंड वेरिएबल B होल्ड्स value of 20. For example, equal to A equal to B is not true. Why? Because A value of A is 10. 10 equal to 20? No. So not true. Not equal to. This is a not equal to relational operator. A once again value is a 10 not equal 20. 10 not equal 20. Yes, 10 not equal 20. So value is true. Next, greater than 10 greater than 20. Yes, no. 10 greater than, not greater than 20. So value is not true. Less than 10 less than 20. Yes, it is true. Greater than equal to 10 greater than equal to 20. No. 10 not greater than or not equal to 20. So value is not true. Less than equal to. Value of 10 less than equal to 20. Yes. 10 less than 20. Okay. So value is true. So this is a relational operator. Next one is a bitwise operator. What is bitwise operator? Java defines several bitwise operators which can be applied to the integer type long, int, short, char,
and byte. Bitwise operator works on bits and performs bit by bit operation. ये जो bitwise operator रहता है वो बिट्स पर वर्क करता है और बिट बाय बिट ऑपरेशन क्या करता है, परफॉर्म करता है. Assume if a is equal 60, okay, and b is equal 13. Now in binary format they will be follows. अब हम इसका अगर बाइनरी फॉर्मेट में अगर चेंज करें तो ये कैसे चेंज होगा. a is equal 00111100, b is equal 00001101. ये कैसे चेंज हुआ बाइनरी में, आइए हम समझते इसको. a is equal 60. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला क्या होता है, 1 2 4 8 16 32 64 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128. सो these are the format, 4 grouping of 4. So 60, then यहाँ पर क्या है, 1111 0, sorry, this is a 1100 1100. अब देखो, अब ये फार्मूला होता है, ये आप सोच रहे होंगे ये क्या है, क्या लिखे है सर. तो ये क्या होता है, आपका फार्मूला होता है 1 2 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 32 2 ज़ा मल्टीप्लाई 64 64 मल्टीप्लाई ज़ा 2 128. अब इसमें क्या होता है, ये जो 1 1 है हम उसी नंबर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और देखेंगे कि ये 60 आ रहा है कि नहीं आ रहा है. सो देखो 32 और 16 कितना हुआ, 48 40 और 8 56 56 प्लस 4 60, टोटल 60 है. और बाकी जिस नंबर का यूज़ नहीं है उसके सामने हमने क्या लिखा है, 0 and 0. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 60. सो नेक्स्ट b इज इक्वल 13 के लिए सेम फार्मूला यूज़ करेंगे. तो 8 4 12 और 1 13, ठीक है. 8 प्लस 4 12 12 प्लस 1 13. सो 1 इस नंबर का यूज़ नहीं हुआ तो 0 1 1 बाकी 0. सो 13 के लिए 00 00 11 01. देखो यहाँ पे वही नंबर है 00 00 11 01. सो इस तरह से क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं. ए एंड बी के लिए ये नंबर हुआ, ए और बी के लिए ये नंबर, ये कैसे आया हम देखते हैं. देखो ए एंड बी के लिए, अब मैं इसी में अगर मैं बात करूं, ये ए का वैल्यू हुआ, ए का वैल्यू हुआ, ये बी का वैल्यू हुआ. सो यहाँ पर एंड के लिए देख रहे हैं, एंड ऑपरेटर के लिए, एंड ऑपरेटर के लिए क्या होता है, जो 1 एंड 1 इज 1, बाकी सभी जो है 0 होता है, ठीक है. एंड में 1 1 1 होता है, बाकी सभी 0 होता है. तो देखो कहाँ पर 1 1 आया है, 0 1 0, मैं बोला हूँ ना 1 1 ओनली 1 अदरवाइज 0. सो 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0. सो दिस वैल्यू इज ए एंड बी. मैच कीजिए 0 0 4 टाइम 0 1 1 0 0 4 टाइम 0 1 1 0 0. नेक्स्ट और के लिए क्या होता है, और इज दिस इज अ और सिंबल, पाइप सिंबल बोलते हैं इसको, पाइप. और में क्या होता है, 0 और 0 होगा, 0 और 0 दोनों जगह अगर 0 है तभी 0 होगा, बाकी ट्रू होगा. चाहे 1 0 हो तो भी 1, 0 1 हो तो भी 1, और 1 1 हो तो भी 1. मतलब इसमें सिर्फ देखना है आपको, 0 0 है तभी 0 होगा, बाकी 1 होगा. अब देखो यहाँ पर 0 1 1
0 0 0, 1 1 1, 1 1 1 है, 1 1 1, 1 0 1, 1 0 1, 0 0 0, 0 0 0. So this is the value of A or B. So 0 0 1 1 1 1 0 1, same value 0 0 1 1 1 1 0 1. Okay. Next one is a 0 0 1 1 0 0 1 1. This is a caret symbol. कैरेट में क्या होगा? कैरेट में क्या होता है? जो सेम सिंबल रहेगा. सपोज 0 कैरेट 0 0, 1 कैरेट 1 0. ओके. सेम सिंबल के लिए 0 होगा और डिफरेंट सिंबल के लिए 1 कैरेट 0 1, 0 कैरेट 1 1. ओके. सो 0 1 1, सेम कैरेट 0, सेम नंबर, सेम सिंबल है 1 1 0, 1 1 0. डिफरेंट 1 और 0 1, 1 और 0 1, सेम 0 and 0 0, 0 and 0 0. ओके. नेक्स्ट एक्सक्लेमेशन. इट मीन्स इसका मतलब होता है नॉट. 0 और 1 है तो 0 होगा. 0 0, सॉरी यहाँ पर ए लिखा है ना. ओके. ठीक है. इसका मीन्स होता है टिल्ड ए. टिल्ड ए मतलब क्या होता है? सपोज ए का वैल्यू है यहाँ पर 0 0 1 1 1 1 0 0. तो टिल में चेंज होता आता है. वैल्यू जो होता है वो अपोजिट हो जाता है. कैसे? जहाँ जहाँ पर 0 है वहाँ पर 1 होगा और जहाँ पर 1 1 है उसके सामने 0 हो जाएगा. इस तरह से. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टिल ए. सो आई होप bitwise operator is clear. Next one is a the following list the bitwise operator assume integer variable a holds 60, variable b holds 13, then and bitwise and बोलेंगे. this symbol is a bitwise and. So A and B. A and B means this is a 60, value of 60, and B value is a 13. Will give 12, which is a 12. यहाँ पे समझते हैं. ये 12 कैसे होगा? यहाँ पर देखते हैं. ट्वेल्व कैसे होगा? ए इज इक्वल क्या था? 0 0 1 1 0 0. सो वैल्यू इज अ 12. हाउ? कैसे? देखो ये इसको मैंने क्या बोला था? 1 2 8 1 2 4 8 16 32 64 128. 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128. सो 8 + 4 12. बाकी जो यूज नहीं हो रहा है उस नंबर को हम एडिशन में काउंट नहीं करते हैं. सो वैल्यू इज अ 12. सो वही यहाँ पर बोला गया है. A and B will give 12, which is 0 0 1 4 times 0 1 1 0 1 00. Okay, this is a bitwise or. will give 61. काउंट कर लीजिए 61 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 61 हो रहा है. यहाँ पर देखो इसको क्या बोलते हैं? 32. 32 और 16 60 हो रहा है क्या?
ओके ओके, हाँ देखो 32 और 16 48, 48 प्लस 8 56, 56 प्लस 4 60 और 60 प्लस 1 61. सो वैल्यू इज अ 61. सो जो बाकी के जो सिंबल्स हैं उसमें भी सेम वही हो रहा है. बिट वाइज एक्स और ए और बिट वाइज एक्स और बी will give 49. Same, this is a minus 61. Oh, next one is a left shift. Left shift operator means इसमें लेफ्ट शिफ्ट हो जा रहा है. लेफ्ट शिफ्ट यहाँ पर ए लेफ्ट शिफ्ट 2 will give 240. तो यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट कैसे हो रहा है, आइए हम एग्जांपल से देखते हैं. यहाँ पर क्या है, ए लेफ्ट शिफ्ट 2, इट मीन्स यहाँ पर जो ये जो जीरो है, लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, ये जो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड का जो 2 जीरो है, यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर 2 लिखा है, 2 लिखा है मतलब 2 जीरो. लेफ्ट साइड का जो 2 जीरो है वो मूव होके यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 टाइम 0 4 टाइम 1. So this is the value of 4 time 1 4 time 0. Right shift means this is a right shift. मतलब यहाँ पर ये जो A का जो 2 जीरो है यहाँ राइट शिफ्ट होके इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 टाइम 0 4 टाइम 1. सो हम 4 टाइम 0 को काउंट नहीं किए हैं क्योंकि 4 टाइम 0 सामने आएगा. सो अवर नेक्स्ट जो उसका वैल्यू तो 0 ही होगा ना. सो दिस इज अ रियल वैल्यू. नेक्स्ट इज अ लॉजिकल ऑपरेटर. लॉजिकल ऑपरेटर, द फॉलोइंग टेबल लिस्ट द लॉजिकल ऑपरेटर एज्यूम बुलियन वेरिएबल ए होल्ड्स ट्रू एंड वेरिएबल बी होल्ड्स फॉल्स. देन double, this is a symbol of logical and this is a logical or, this is a logical not. So A logical and B is false, A logical or B is true, not logical A, logical not is true. Okay. Next one is assignment operator. Following are the assignment operators supported in Java. So these are the example of logical. C is equal A plus B will assign the value of A plus B into C. Plus is equal C plus equal A is equivalent to C is equal C plus A. It means C यहाँ पर रहेगा, equal sign यहाँ पर रहेगा, फिर से again C यहाँ पर रहेगा plus A. Minus equal means C minus equal A is equivalent to C is equal C minus A. Multiply में C multiply is equal A is equivalent to C is equal C multiply A. Division equal to C divide A equal to A is equivalent to C equal C divide A. Modulus C modulus is equal A is equivalent to C equal C modulus A. Right shift C right shift is equal to is right shift, sorry, this is a left shift, this is a left shift. Okay, C left shift is equal to is same as C is equal C left shift left 2. Right shift equal C right shift equal to is same as C equal C right shift 2 and A equal C and equal to is same as C equal C and 2 or equal C or equal to is same as C equal C or 2. Next, not equal or equal C, ये कैरेट इक्वल है. ओके, C caret equal 2 is same as C equal C or 2. So this is a logical
assignment operator. So these all topics are clear. So thanks for watching. Thank you.